Good afternoon, everyone. This is Dr. Vikramjeet Singh Bhadoria, Senior Resident, Department of Pediatrics from Sharda Hospital. Joining us, thanks for joining us in Facebook Live session. We all celebrate ORS Week from 25th to 31st July, as it has turned out to be one of the main weapons for our fight against diarrhea-related childhood mortality in this whole world. So, slogan for this year's ORS week is Jodi number 1, ORS plus zinc, which stands for joint use of ORS and zinc stops diarrhea related infections. So we will be having a conversation with on ORS and its usages with Dr. R.K. Thapar, Professor and HOD of Pediatrics Department, School of Medical Sciences and Research, Sharda Hospital. Thank you, Dr. Thapar, for joining us today. So let me introduce Dr. R.K. Thapar to all our viewers before we begin our session. Dr. Thapar has over 30 years of experience and expertise in the field of pediatrics. He is passionate about social pediatrics and believes in holistic care of children. In today's insightful session, we will be discussing about ORS. So, Dr. Thapar, please enlighten us and our audience with some basic information about ORS. Thank you, Dr. Vikram. Interesting that we are discussing the WHO ORS Day today, being 29 July. So this every year is being celebrated just to create awareness and information about the ORS to the community at large. Now this ORS, if I tell you that even the Lancet, a very famous medical journal, has published it as it is one of the most important medical advance of this century. So that is the importance of knowing the ORS. So the purpose of today's day generally is to create awareness about the uses of ORS and to make the community start using it. Basically, I call it as a Amrit Jal, because this ORS, the oral rehydration salt solution, basically is used to rehydrate the children when they suffer from diarrhea, they suffer from vomiting or high-grade fever, and in all these conditions there is a loss of water and electrolytes. As you know, in our body the whole system, वाटर बैलेंस का जो सिस्टम है हमारे बॉडी में वो बिल्कुल नाप तोल के चलता है कि जितना हम पानी पीते हैं उसी तरह से हमारा पेशाब में, हमारे स्वेट ग्लैंड में, हम जब सांस लेते हैं उसमें, तो पानी का बैलेंस बहुत ही क्रिटिकल रहता है हमारे सिस्टम में. जब भी कभी डायरिया हो जाता है या लूज स्टूल हो जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी होने का डर रहता है. ORS उस चीज़ को बचाने में बहुत ही यूज़फुल एक इन्वेंशन है. ख़ास बात इसमें यह है कि और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप सबको बहुत सुन के ये हर्ष की बात होगी कि इसका जो इन्वेंशन है ये हमारे एशिया में हुआ है, इनफैक्ट कलकत्ता में और ढाका में. तो इसका जब वहाँ पे कॉलरा के एपिडेमिक्स होते थे तो उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अगर वो ORS दे रहे थे तो उनकी जानें बहुत सारी बच पाई. तो वहीं से ये उन्होंने कंसेप्ट लिया कि जब भी हम ग्लूकोज के साथ सॉल्ट को मिक्स करके देते हैं तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि डायरिया लगा रहता है फिर भी वो सिस्टम जो है इंटैक्ट रहता है. ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर सिस्टम, उसी बेसिस के ऊपर ही ORS का निर्माण हुआ है. और फिर बहुत सारे एजेंसीज़ ने, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इसको मान्यता दी है. तो आप इसको एज ए रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझ सकते हैं कि वो जिसका जो इन्वेंशन एशिया कंट्रीज़ में हुआ है और बाहर वाले लोग इसको फॉलो करते हैं. थैंक यू सर. सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू गिव ORS? जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे हमारे बॉडी में हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटाशियम और पानी का बैलेंस बहुत ही क्रिटिकल रहता है, बिल्कुल नेक टू नेक रहता है. जितना हम इनटेक करते हैं उतना ही हमारा आउटपुट रहता है. तो जब भी ये बच्चे को या अडल्ट को भी डायरिया होता है तो उसमें पानी का लॉस और सॉल्ट का लॉस बॉडी से हो जाता है. उसकी भरपाई करने के लिए
हमें इस ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये बेहद सस्ता, सुंदर और एक टिकाऊ तरीका है शरीर की पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए। Sir, are there any other types of ORS? Any other methods of preparing ORS? if we say so, in that situation, इस तरह से ORS का तो एक कंप्लीट फार्मूला है ORS जो है। इसके अलावा हम ये आम अपने कम्युनिटी से, सोसाइटी से ये अनुरोध करते हैं कि वो जब भी अपने उनके घर में बच्चे को किसी को डायरिया शुरू होता है तो उस दौरान वो कम से कम, अगर उनके पास ORS का पैकेट नहीं है तो घर में अपना होममेड ORS बना सकते हैं, जिसमें कि आप एक पीने वाला पानी ले सकते हैं 1 लीटर, उसमें 6 चम्मच हम बोलते हैं आप उसको शुगर मिक्स कर लीजिए, आधा चम्मच हम बोलते हैं नमक मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा उसमें हल्का सा नींबू का पानी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। तो एक वो घर में, कहने का तात्पर्य है कि हम उसको घर में ही शुरू कर सकते हैं। आइडियली है कि अगर आपके पास ORS का फार्मूला है जो कि WHO अप्रूव्ड है, वो सबसे बेहतर है। इसके बनस्पत जैसे हम लोग चावल का मांड वगैरह बनाते हैं घरों में जो बनता है, तो उसको भी एज ए बेस यूज़ करके उसमें भी सॉल्ट और शुगर मिला के वो भी दिया जा सकता है। सो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नारियल का पानी दे सकते हैं, हल्की चाय दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे इंटेस्टाइन में जब भी डायरिया होता है तो उसका हमें ये तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि हम बिल्कुल बच्चे का खाना पीना बंद कर दें तो उससे उसका डायरिया ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ये करने से बच्चा कुपोषण में चला जाता है, और कुपोषण के जाने के बाद बच्चे में और इम्यूनिटी का डिस्टर्बेंस हो जाता है और वो और इन्फेक्शन को प्रोन हो जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इस विशियस साइकिल में हम बच्चे को नहीं जाने देना है। इसलिए जितने भी ये तरीके हैं, चाहे आप ORS पिलाएं, होम बेस्ड करें, राइस बेस्ड करें, और बाकी, और ख़ास बात यह है कि हम ये भी अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि इस दौरान बच्चे का फीडिंग में रुकावट नहीं आना चाहिए। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करिए, और जो आप और उसको खाने का, जिस तरह से वो पहले खाता है, चाहे वो कम मात्रा में खाए, पर उसको आप खाना पीना उसका जारी रखिए ताकि उसकी न्यूट्रिशन में किसी भी तरह का कोई बाधा ना आए। Thank you, sir. Moving on to next question. What is the difference between, sir, ORS and ORT? डॉक्टर विक्रम, देखा जाए तो ORT एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करके हम बोलते हैं। ORS उसका एक कंपोनेंट है, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन। ORT में आप बाकी सब चीज़ें भी ले सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग टू कंटिन्यू, एडिशनल कोकोनट वाटर है, कर्ड राइस है, खिचड़ी है, ये सारी चीज़ें एज ए पार्ट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। कहने का तात्पर्य है कि हम उसको मुख से ही देने का एनफोर्स करते हैं, कोशिश करते हैं। हमें ये मालूम है कि जो भी हम ओरल देंगे वो अब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज के साथ सॉल्ट भी अब्जॉर्ब होगा जो हमें चाहिए, ताकि उसमें हमें, और वाटर खासकर पैसिव ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए ORT और ORS is part of ORT only. Thank you, sir. And when should you not take ORS solution? सही क्वेश्चन आपने पूछा है। आइडियल सिचुएशन में जब भी बच्चे को डायरिया, दस्त लगते हैं, उल्टी लगता है, तेज़ बुखार आता है, जहाँ घर में कई बार बर्न्स हो जाते हैं, बच्चे चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, तो इन सिचुएशन में आपको शुरू करना चाहिए, सारी कंडीशन में शुरू करना चाहिए। सिर्फ वही कंडीशन होगी जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे को उल्टी हो रही है, कि कोई भी चीज़ वो टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको हमें बच्चे को एडमिट करके और उल्टी को रोकने के लिए दवाई देनी पड़ती है। जहाँ कई बार देखा गया है कि बच्चा इतना ज़्यादा पानी का लॉस हो गया है कि वो शॉक में चला गया है। जहाँ जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे जब पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो पोटाशियम की भी कमी हो जाती है। तो जब पोटाशियम की कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स में वीकनेस आ जाती है। इसी तरह ये वीकनेस आंतड़ों में भी आ जाती है, जिसको कि हम इलियस बोल देते हैं, कि आंतड़ें काम करना बंद कर देती हैं और बच्चा बेसुध है, और इतनी ज़्यादा हालत उसकी बिगड़ गई है कि बच्चा बेसुध हो गया है। तो इन सारी सिचुएशन में
हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे को, जबकि बच्चा अच्छे से ना पी पाए, या उसका पेट फूलने लग जाए, या उसका उल्टी नहीं रुके, या बच्चा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाएं, तो ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी सिचुएशन है जो कि एक सीरियसनेस को दिखाती है। ऐसी सिचुएशन में तो हॉस्पिटल में मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल में लाके उसका सही इलाज करना। उस सिचुएशन में आप होम बेस्ड थेरेपी में नहीं पड़ना चाहिए। So, sir, does ORS increases blood sugar? नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा तो कहना गलत होगा, क्योंकि हम उसमें सिर्फ मैयड अमाउंट ही ग्लूकोज डालते हैं सॉल्ट के साथ। तो मैं ये नहीं मानता कि उससे आपकी ब्लड शुगर में कोई चेंज आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा उसमें। So, is ORS good for low blood pressures also? देखा जाए तो जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी का कमी हो जाती है शरीर में, सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो पल्सेस आपकी थोड़ा सा वीक होनी शुरू हो जाती हैं। और वो तभी सिचुएशन होती है कि जब वो आपने उसको इनिशियल स्टेज में प्रिवेंट नहीं किया। हमारा ORS डे मनाने का यही होता है कि हम कम्युनिटी को ये समझाने की कोशिश करें कि वो एट द अर्लीस्ट अपना शुरू कर दें, ताकि उस सिचुएशन तक ना पहुँचे। ये कहना कि ORS लो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, उसको हेल्प करता है प्रिवेंट करने में। पर एक बार बच्चा उस स्थिति में पहुंच गया, तो इसका मतलब हमारा जो हमने जो करना चाहिए था वो पूरा नहीं था। तो उसमें, तो उस टाइम पे बच्चे को ORS के साथ साथ इंट्रावेनस फ्लूइड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हेल्थ केयर वर्कर के पास जाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी में जाके अपना आगे की राय लेनी चाहिए। Yes, yes. Sir, are there any side effects with ORS? डेफिनेटली नो साइड इफेक्ट्स। जो कंप्लीट फार्मूला WHO का फार्मूला है, अगर हम सही मात्रा में, सही कंडीशन में देते हैं, तो इसका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ होम बेस्ड वाला जो हम बनाते हैं घर में, उसमें अगर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि चीनी ज़्यादा डल गया, शुगर की मात्रा को हमें सही नहीं डाला, तो उस कंडीशन में देखो कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो पानी को आंतड़ों से बाहर निकालेगा, तो वो डायरिया को वर्सन करेगा। सिमिलरली अगर सॉल्ट ज़्यादा हम डाल देते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो होम बेस्ड वाला अगर सही ढंग से नहीं बनाया गया तो उसमें पॉसिबिलिटी है, चांस है। अगर सही बनाया तो उसमें भी नहीं है। बट अगर जो WHO अप्रूव्ड कंप्लीट फार्मूला ORS का है, उससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट का बिल्कुल कोई अंदेशा नहीं है। बिल्कुल ये सबके मन में क्लियर होना चाहिए। Sir, when is it appropriate to recommend the use of homemade oral rehydration therapy? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में, हमारे बहनों को, माताओं को ये इतना इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जब भी दस्त शुरू होते हैं तो इमीडिएटली हमें अपने घर में ORS का पैकेट रख के उसको, आजकल तो छोटे वाले पैकेट भी आते हैं जिनको कि आप एक गिलास में घोल सकते हो 250 ml में, तो आप एक गिलास में घोलो, उसको साथ साथ देना तभी से शुरू कर दो, ताकि तो इससे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम उस सिचुएशन में पहुंचने नहीं देंगे बच्चे को कि उसको जो लॉस हो रहा है हम साथ साथ रिप्लेस कर रहे हैं, सो ऐसी सिचुएशन में तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि देयर विल बी नो चांस ऑफ चाइल्ड गेटिंग इनटू डिहाइड्रेशन। तो अगर वो बच्चा डिहाइड्रेशन में चला जाता है तो फिर हमें अपना प्रॉपर ORS देना चाहिए। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास ORS पैकेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, या मेडिकल स्टोर आपके आसपास नहीं है, रात का टाइम है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे भी आपको ORS का असेस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास सुविधा है, आप कुछ बना सकते हैं घर में, तो आप घर वाला घोल भी दे सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। बट घर वाले घोल में एक तो पोटाशियम जो ORS में होगा वो नहीं होगा, दूसरा है कि उसमें ऊपर नीचे होने का डर है, क्योंकि दो चीज़ें आपने, नमक को भी नापना है, चीनी को भी नापना है, पानी को भी नापना है, जबकि ORS पैकेट में हमने सिर्फ पानी को ही नापना है, तो वो उसमें गलती का थोड़ा सा है। तो इसलिए इनिशियल पार्ट में यस दे कैन स्टार्ट,
if they don't have the ORS packet at home, or it's odd time that is not available, but otherwise they should use the ORS packet. It is only in the initial stage that they can give the homemade. Sir, can we include ORS in daily diet of children? डेली डाइट में देखो, अगर बच्चा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, और वो अपना बिल्कुल नॉर्मल खाना पीना खा रहा है, छोटा बच्चा है, 6 महीने से कम है, पूरा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, 6 महीने से ज़्यादा है, उसको हमने वीनिंग फूड, कम्प्लीमेंट्री फूडिंग शुरू कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में उसको एज ए टॉनिक का तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है. बट अगर बच्चा फीवर हो जाता है तो उसका लॉस चांसेस ज़्यादा है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में देना ठीक रहेगा. इसके बनस्पत की आप उसको डेली रोज पिला दें, उससे इससे कोई उसकी सेहत में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला. Sir, how does ORS affect in children around 15 years of age? ओआरएस तो भैया ऐसा अमृत जल है कि अगर हम भी बीमार हों, हमें भी वही लेना पड़ेगा. सो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अडल्ट हैं, सब में ओआरएस काम करेगा. ओनली थिंग है कि जो न्यू बॉर्न्स वाला सिचुएशन होता है उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिल्यूट करने के लिए थोड़ा सा बोल देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा न्यू बॉर्न्स के टेलर मेड बन जाता है. अदरवाइज इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप्स. That was my next question. Is ORS prescribed for newborn baby and infants also if they are suffering from diarrhea? If they are taking breastfeed adequately, so then we may avoid it. But in case the loose motions are persisting despite and there is a possibility of going into dehydration, then it can be prescribed. It can be little more diluted, maybe 1.5 times you can dilute the normal ORS. So that's what is there. There's no contraindication for giving ORS to anybody. So, sir, does drinking ORS casually without any health problems such as diarrhea would have an adverse effect? Not exactly adverse effect as such, but if one has to have the temperament for that, and if there's no health problem, then if we are taking our normal diet, in the normal diet we take glucose, we take carbohydrate, we take salt, we take proteins. If I am eating a normal healthy diet, is 3 proper meals with some snacks in between, so then I don't think we need any, but as such it will not have any adverse effect. It will not have any adverse effect as such, but why one should take if he is not having any problem as such? That's what is my take. But it will, as a drink, if you want, if you like some flavor, orange flavor, or else, because nowadays many flavors are available. So that's good. Maybe in evening time, if you want to have 1 glass of ORS, so it will not have any side effect or bad effects. If you like it, go ahead. Sir, we have a few questions from the comment section also that we would like you to answer. Okay, no problem. So the first question is from Ruchi Kaur. She's asking how much ORS should you drink in a day? Oh, that depends upon the age of the child, and the for example, and the level of dehydration. Okay, for example, a child who is less than 1 year of age, and he is not dehydrated as such, so and he is passing loose stools, so we recommend that he should take about 50 to 100 ml per stool, maybe in a day 500 ml. Okay, and if the age is more, then we say he can take 500 to 1 liter. Okay, so that's why. So it all depends on the age of the child and the severity of the illness. How much severe the dehydration is. Because WHO has given the plans, plan A, B, that is for no dehydration, some dehydration, severe dehydration. So in severe dehydration, they say if the child is less than 1 year, in that situation we give it over 6 hours. If the child is more than that, we give it, that means 1 hour and 5 hours. And if the child is more than that, we give half an hour and 2.5 hours, 100 ml. 30 ml first, 1 hour, 70 ml next 5 hours. So, a bigger child, half an hour, 30 ml, and then
70 ml in next 2.5 hours. So it all depends upon the age of the child. But it's always better that if the child has started passing loose tooth, पतली लैट्रिन कर रहा है, पैखाना ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हर मिनट 2 मिनट के बाद चम्मच 2 चम्मच के साथ ORS का पानी देते रहना चाहिए. उसमें शरीर में पानी की और सॉल्ट की कमी नहीं आएगी. एक बार कमी आनी शुरू हो जाती है, फिर हमें उसका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा, बिकॉज फिर हमें उसका डेफिसिट फ्लूइड देना पड़ता है, जो डेफिसिट चला गया, प्लस उसका रिप्लेसमेंट. तो फिर हमें थोड़ा सा मात्रा उसकी, जैसे मैंने पहले बताया, 50 से 100 ml पर स्टूल दे सकते हैं. बड़ा बच्चा है तो 100 to 2 ml एक्स्ट्रा देना पड़ता है एवरी पासेज ऑफ स्टूल. सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू टेक ए हेल्प फ्रॉम ए हेल्थ केयर वर्कर. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा ऐसी सिचुएशन में होता है कि जिसमें कि वॉमिटिंग या लूज मोशन है, तो इनिशियली उसको इमीडिएटली आप घर में ही अगर ORS शुरू कर देंगे तो वो डिहाइड्रेशन वाली स्टेज में नहीं जाएगा. अगर डिहाइड्रेशन की स्टेज में चला गया तो हमें फिर उसका ऑनगोइंग लॉसेस, जो ऑलरेडी उसका स्टूल चल रहा है, प्लस उसका जो डेफिसिट है, तो दोनों को देना पड़ेगा. Thank you, sir. Next question is from Amit Jain. How long should we wait to give ORS to a person who is suffering from diarrhea or upset stomach? How much? How long should we wait to start the ORS solution? If one There is is no suffering need to from- wait. Why wait? Why wait? है ना, इसको इमीडिएटली दीजिए ना. अब अगर आप प्रॉब्लम आपका शुरू हो चुका है तो उसको इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर आपका आगे गाड़ी ठीक चलती रहेगी. नहीं तो आप फिर गाड़ी एक बार पटरी से उतरेगी तो फिर और ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा उसको वापस लाने के लिए. Next is from Deepthi Arneja. She's asking, can we give ORS if a child vomits? You can repeat the ORS. There is no problem. Even in vomiting also, some amount will be absorbed. So that is the basis, scientific basis. Even if the child passes stools, even if he is vomiting, you can still give ORS. Maybe one can try giving some anti-emetics, vomiting को रोकने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं ओरल, ताकि वो बेटर अब्जॉर्ब करे और उसका वॉमिटिंग वाला रुक जाए. पर दे सकते हैं, इस पर कोई आप रिपीट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उसने एक बार उल्टी कर दिया तो बस उसके बाद उसको बिल्कुल बंद कर दिया. नहीं, ये नहीं है, देना चाहिए. Next question is from Ritika Gupta. Is it safe for a lactating mother to have ORS? Why not? No problem. She can have if she is having, because lactating mother as such needs to have more energy, more calories, so that she can produce that much milk for the baby. And if she is dehydrated, so naturally her milk output will get problematic and the baby will also suffer. So all the more reason that she can have. There is no reason that there is no problem of that she cannot have. Next question is from Tarun Sharma. How long can we store ORS solution? Good, interesting question. So the standard ORS which we are getting, there is a low osmolar solution. If we have taken 1 liter packet and dissolved in 1 liter, so recommendation is that we should use it within 24 hours. But there are many other types of ORS which are super ORS type available. They need to be used in 12 hours. So if you are using a WHO approved ORS, you can use it for 24 hours, but keep it safe. Don't keep it in an open container with unhygienic condition. So that is the only condition. Otherwise, you can use it for 24 hours. Next question is from Snigdha Roy. My father's potassium level, sodium and potassium level is low. Does drinking ORS have any role in maintaining or regulating sodium potassium levels in the body? Yeah, bilkul. This is I don't know the exact age of the father of Miss Snigdha. So, in fact, this is a problem in the old age. Okay. They go into electrolyte abnormalities. Their sodium levels come down. They have got altered sensorium. They can fall. So within limited guidelines, they can give ORS. It will help in maintaining, because as in newborn, even in the old age, the kidneys start not working properly, adequately. So we can have both the problems in the early period as well as old age
especially if they are on antihypertensive drugs, if they have got renal abnormalities. So it's good, you can give it. Next question is from Ayush Sharma. Can ORS be combined with other sugar drinks, Tetra Pak juices with and other preservatives? No. It shouldn't be. In case you are dissolving the ORS, please dissolve in a clean drinking water. No Pepsi, no cola, no juice, and no, it should not be dissolved in any other thing. I can only suggest is that you can have coconut water, you can have chach, matha. These are the other things, but don't dissolve ORS salt solution in any of the juices. In fact, juices as such we don't recommend in diarrhea because they are osmotically, they draw more water. So they worsen the diarrhea. So no juices for diarrhea children. Thank you, sir. Next question is from Nishant Tyagi. Are gastroenterological issues common after having ORS? No, in fact, it is no. This is not true. This is not true. So moving on to next question from Ananya Hari. Why is pre-packed ORS referred to as complete formula, and why is a home prepared solution not as effective for treatment? Homemade is effective if it is prepared properly, whereas the प्री-पैक्ड फार्मूला जो ORS का सॉल्ट सोल्यूशन हम बोलते हैं, उसमें क्या है कि उसमें देयर आर टू अदर प्रोडक्ट्स. वन इज पोटाशियम which is not there in the home based. The other is trisodium dihydrate. So because in dehydration there is some evidence of acidosis also. So we have to give the base. So these two things are not there in the home based. So home based is only for the initial period to start with till the time to you get a proper complete. That's why it is called complete formula. So there are two deficiencies in the homemade. That is of potassium and citrate. So this is the last question. It's from Kabir Agarwal. Is there any age restrictions for ORS? No age restriction. No, even in fact where we have said that it can be given to neonates, children, toddler, adults, and old age. So no age bar, no sex bar. So both male and female can have ORS quite comfortably and take it as a Amrit Jal. So that's why people have said it to be the most important medical advance of this century. So there's a big statement from a reputed journal, that is Lancet. And not only that, WHO, UNICEF, all of them are promoting on a global scale. So they will not be promoting as such. So it has got a scientific basis, and many lives have been saved. Not only the frequency of stools, the volume of stools, the need for hospitalization, the need for parental fluids, ग्लूकोज लगाने के, ये सब चीज़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से कमी होती है. एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि जो थीम हमारा है ORS प्लस जिंक का भी बहुत अच्छा रोल पाया गया है डायरिया में, क्योंकि ये गट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, गट की एपिथेलियम रीजनरेशन में हेल्प करती है, एंड उसको जितने दिन के लिए बोला जाता है 14 दिन के लिए देने से दोबारा डायरिया होने का चांस कम हो जाता है. तो इसलिए लेट्स सेलिब्रेट दिस डे विद अ थीम दैट इट शुड बी ORS शुड बी गिवन विद अ जिंक, and zinc more than 6 months it is 20 milligram for 14 days. So दोनों चीज़ों के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, प्रूवन फ़ायदे हैं, साइंटिफिकली प्रूवन फ़ायदे हैं. तो इसको हमें पूरा अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसको इसके बारे में जानें और इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें. Thank you, sir, for sharing this information with us. The session was highly informative, and I'm sure our audiences have got all the information which they have been looking for. Thank you.